ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی بابر اعظم ہی کریں گے، جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کو انجری کی وجہ سے قومی اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں بابر اعظم، شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤف، افتخار احمد، شاہین افریدی، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، حسن علی، سعود شکیل، سلیمان آغا اور اسامہ میر کو شامل کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم خطاب میں جموں و کشمیر کے تنازع، علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے اور ملک کی معاشی بحالی کا عمل مستحکم بنانے کے اقدامات پر بھی بات چیت کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف سمیت دیگر وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ جلیل عباس جیلانی نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائن پر اپنے روسی ہم منصب سرگئی سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ وفود کے ہمراہ اعلیٰ سطحی ملاقات میں دونوں وزرائے خارجہ کی جانب سے دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کے لندن پہنچنے کے بعد مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک آج متوقع ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی لندن پہنچ گئے، جبکہ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی لندن میں موجود ہیں۔ نون لیگ کی آج ہونے والی غیر معمولی بیٹھک میں صرف نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شریک ہوں گے، جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اہلیہ بشریٰ بی بی کی ایف آئی اے میں طلبی کا نوٹس معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بشریٰ بی بی کی آڈیو لیکس طلبی نوٹس کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت لطیف کھوسہ نے کہا کہ کیس عدالت میں زیر التوا ہونے کی وجہ سے اگر ایف آئی اے کارروائی جاری رکھتی ہے تو اس سے پٹیشنرز کے حقوق متاثر ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی معاون خصوصی مشال ملک کا کہنا ہے کہ اس وقت سکھ بہن بھائی بہت مشکل میں ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ننکانہ صاحب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی معاون خصوصی مشال ملک گردوارہ جنم استہان پہنچ گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بابا گرو نانک نے امن کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ مشال ملک نے کہا کہ کینیڈا کے اندر سکھ فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آر ایس ایس کے لوگ کینیڈا کے اندر سکھ فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو کالعدم قرار دے۔ پشاور سے لاہور جانے والی بس سرگودا میں ٹائر پھٹنے کے سبب حادثے کا شکار ہو گئی۔ 3 مسافر جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق حادثہ موٹر وے کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب پیش آیا، جب ٹائر پھٹنے سے مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 15 مسافر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 5 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اور حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 29 ستمبر جمعۃ المبارک کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم کی منظوری سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ अलीना मुज़फ्फर। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का आगाज़ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वजीर आजम खिताब में जम्मू कश्मीर के तनाज़े, इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। मुल्क की मईशी बहाली का अमल मुस्तहकम बनाने के इक़दाम पर भी बातचीत करेंगे। न्यूयॉर्क में कौंसिल एंड फॉरेन रिलेशंस फोरम पर खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम का कहना था कि टीटीपी और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस है। टीटीपी और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और अमरीका की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीह है। अफगान हुकूमत से बराह रास्त राब्तों का खैर मुकदम करते हैं। मुआशी खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पड़ोस में अमन और इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब कर लेंगे। निगरान हुकूमत का मैंडेट आजाद और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। मुस्तहकम और जमहूरी पाकिस्तान हमारी तरजीह है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने रूसी हम मनसब सरगई ल्योरोफ समेत दीगर वज़राए खारजा से मुलाकातें की है। जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन पर अपने रूसी हम मनसब सरगई से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। वफूद के हमरा आला सतही मुलाकात में दोनों वज़राए खारजा की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी उमूर पर गुफ्तगू की गई। निगरान वजीर खारजा ने इसी मौके पर अपने क्यूबन हम मनसब ब्रूटो रूडेगियो से भी मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा कसीरुल जहती और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तफाक किया है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लंदन पहुंचने के बाद मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक आज होगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंच गए हैं, जबकि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन में मौजूद हैं। नून लीग की आज होने वाली गैर मामूली बैठक में सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीक होंगे, जिसमें अहम फैसले मतवक्के हैं। अहम मुलाकात में नून लीग के आइंदा इंतखाबात के हवाले से बयानिए पर मुशावरत होगी, जबकि पार्टी कायद की 21 अक्टूबर को वतन वापसी से मुतालिक हतमी फैसला भी किया जाएगा। जराए ने बताया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज आज की बैठक में मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी मुशावरत करेंगे। नून लीग के पार्टी जराए का कहना था कि नून लीग में धड़बंदियों की इतला पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर लंदन तलब किया था। नून लीग के एक ग्रुप ने नवाज शरीफ से शिकवा किया था कि हमें इस्तकबाल के मामलात पर नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि 10 MPAs और 3 MNAs के ग्रुप ने शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जराए का कहना है कि लीगी कायद नवाज शरीफ खुद पार्टी में धड़े बंदियों से मुताल्लिक मामलात हल करेंगे। दूसरी जानिब जराए का ये भी कहना है कि नवाज शरीफ के हालिया बयानात पर संजीदा हलकों ने तशवीश का इजहार किया था और कायद नून लीग की जानिब से सख्त फैसलों पर कई सीनियर रहनुमा पहले ही नाराज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की FIA में तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की जानिब से सरदार लतीफ कोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत लतीफ कोसा ने कहा कि केस अदालत में जेर इल्तवा होने की वजह से अगर FIA कार्रवाई जारी रखती है तो इससे पटिशनर के हकूक भी मुतासर होंगे। FIA का कहना है कि वाइस मैचिंग करानी है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया
कि FIA किस चीज के साथ वॉइस मैचिंग कराना चाहता है। लतीफ कोसा ने कहा कि हमें SSP ने नोटिस किया है कि FIA ने वॉइस मैचिंग करनी है। आज 12 बजे वॉइस मैचिंग के लिए तलब किया गया है। अदालत ने FIA की जानिब से बुशरा बीबी के तलबी के समन को मुअत्तल करते हुए अगले हफ्ते के लिए फ्रीकेन को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुआविन खसूसी मिसाल मलिक का कहना है कि इस वक्त सिख बहन भाई बहुत मुश्किल में है। मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ननकाना साहब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुआविन खसूसी मिसाल मलिक गुरुद्वारा जनमस्तहान पहुंच गई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा गुरु नानक ने अमन के लिए अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी है। मिसाल मलिक ने कहा कि कनाडा के अंदर सिख फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। RSS के लोग कनाडा के अंदर सिख फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि RSS के लोग हिंदुस्तान में खुलेआम अकलियतों का कत्लेआम कर रहे हैं। खालिस्तान के हामी सिखों को पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुआविन खसूसी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को टॉर्चर किया जाता है। यासीन मलिक को डेथ सेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तंजीम RSS एक दहशतगर्द तंजीम है जो पूरी दुनिया में सिखों और कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत आलिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब तलब कर लिया है। अफसोसनाक खबर शामिल करें। पेशावर से लाहौर जाने वाली बस सरगोदा में टायर फटने के सबब हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं। जराये के मुताबिक हादसा मोटरवे कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब पेश आया, जब टायर फटने से मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 15 मुसाफिर जख्मी हुए हैं, जबकि 5 की हालत नाजुक बताई जाती है। हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 29 सितंबर जुमतुल मुबारक को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। निगरान वजीर आजम की मंजूरी से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 सितंबर जुमतुल मुबारक के रोज मुल्क भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। खबरें और भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। ओके एक मिनट। आवाज आ रही है? आपको बताएं कि मियां चन्नू नवाही इलाके पलगराट के करीब नामालूम मुलजिमान की कार पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। SHO थाना सिटी
عدنان خورشید کے مطابق حق نواز ظفر، عارف اور مظہر 4 افراد عدالت میں پیشی سے واپس آ رہے تھے کہ کار سوار نامعلوم افراد نے گھاٹ لگا کر ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 بھائی غفار اور ظفر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ دوسرے 2 سکے بھائی عارف اور مظہر زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو عملے نے دونوں زخمیوں کو ہسپتال میں منتقل کیا۔ اسی دوران زخمی عارف راستے میں دم توڑ گیا۔ ایک زخمی مظہر کو تحصیل اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وقوعے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ لواحقین کا تلمہ روڈ بلاک کر کے احتجاج جاری ہے۔ پولیس تھانہ سٹی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ ملکہ کوثر مری میں بارش کی رمجم کا سلسلہ شروع ہے۔ کالے سیاہ بادلوں نے ملکہ کوثر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں نے ٹھنڈے دلکش دلفریب موسم کو خوب انجوائے کیا۔ مری میں موجود ہمارے نمائندے رئیس عباسی سے مری کے موسم کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لیتے ہیں۔ جی رئیس بتائیے گا۔ تو ملکہ کوثر کے موسم نے ایک مرتبہ پھر لی ہے انگڑائی۔ رم جم بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے جاری ہے۔ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کالے سیاہ بادل جو ہے وہ ملکہ کوثر میں موجود ہیں اور سردی کی دستک دینا جو موسم نے وہ شروع کر دی ہے۔ میرے ساتھ ایک فیملیز موجود ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ملکہ کوثر کے موسم کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں، ذرا نام بتائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ممتاز ہے۔ تو کل سے ہم آئے ہوئے ہیں، بہت اچھا موسم ہے۔ کل رات سے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے شہر کا ٹمپریچر کتنا تھا اور یہاں آ کر اس موسم کو کیسے فیل کر رہے ہیں اور آنے والے جو ٹورسٹ ہیں انہیں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے میاں والی کے علاقے میں، ہم پپلا سے ہیں، میاں والی کے علاقے میں ہمارا جو ہے نا بہت گرمی تھی، تو یہاں آ کے بہت انجوائے فیل محسوس کیا، مزہ آیا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ بہت سردی ہے اور کل رات سے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور بہت اچھے بادل بنے ہوئے ہیں، بہت اچھا موسم ہے یہاں پہ۔ بالکل، آپ نے ان کی بھی باتیں سنی ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا، گرمی کے ستائے ہوئے ہیں، ملکہ کوثر میں پہنچے ہیں، موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، ہلکی ہلکی سردی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پہاڑیوں کی وادیوں کی جو سینری ہے اسے اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں اپنے دوستوں عزیزوں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ غازی کے تھانے پنیا کی حدود گدوالیہ میں نامعلوم چوروں نے رات کی تاریکی میں 2 ٹرانسفارمرز چوری کر لیے ہیں۔ نامعلوم چوروں نے ٹرانسفارمر سے قیمتی سامان چوری کیا۔ رات بھر سے گدوالیہ اور گرد و نواح میں بجلی کی بندش ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈی پی او سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرانسفارمر چوروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی سے۔ جی مشوانی بتائیے گا۔ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ پنیا کی حدود گدوالیہ میں۔ گزشتہ رات نامعلوم چوروں نے گدوالیہ میں 2 ٹرانسفارمر اتار کر قیمتی سامان چوری کر لیے گئے۔ آئے روز تھانہ پنیا کی حدود میں ٹرانسفارمر چوری ہونے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں اور ابھی تک پولیس چوروں کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکے۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہاں کی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ بیمار اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں کے عوام نے واوڈا کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد ٹرانسفارمروں کو لگایا جائے اور بجلی بحال کی جائے، اور پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ آئے روز ٹرانسفارمر چوری ہونے والے چوروں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ ہم غریب عوام بھی سکون کی سانس لے سکے۔ جی ہاں، میں اس وقت موجود ہوں تھانہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ قصور میں لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائی۔ ایک اور گاؤں کے 350 گھر بجلی چور نکلے ہیں۔ ستوکی گاؤں کے 300 گھر ڈائریکٹ کنڈے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ لیسکو نے 13 ٹرانسفارمرز اتار کر پورے گاؤں کی بجلی کو منقطع کر دیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پورا گاؤں بغیر میٹرز کے ڈائریکٹ بجلی چوری میں ملوث تھا۔ عوامی مشکلات کے پیش نظر گجرات پولیس کی طرف سے کوٹلہ عرب علی خان میں خدمت مرکز کوٹلہ کے عملے نے کام شروع کر دیا ہے۔
साबिक MPA चौधरी शबीर अहमद कोटला, DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने फीता काट कर खिदमत मरकज का इफ्तिताह किया। मजीद जानते हैं कोटला अरब अली खान से नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज MS बाजवा से। जी MS बाजवा साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला अरब अली खान खिदमत मरकज में। मेरे साथ DPO गुजरात अहमद नवाज शाह मौजूद है। इनसे जानते हैं खिदमत मरकज के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि खिदमत मरकज जो है ये जैसे नाम से वाज़ेह हो जाता है कि खिदमत है, ये जनरल लोगों की, आम लोगों की खिदमत है। और ये एक इनके डोर स्टेप पे आ गया। ये तमाम ये जो आबादी है कोटली की और की आबादी के डोर स्टेप पे आ गया। और यहाँ हम 18 सहूलियत फराहम करेंगे लोगों को। और इसमें जो ट्रैफिक का अमला है वो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहेगा। ट्रैफिक लाइसेंस का, लर्निंग का, हर चीज यही शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी है कि जो जायद पेशा लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे इसी वजह से। जब यहाँ पे आएंगे बायोमेट्रिक है, ये सारा सिस्टम है। और जो इसमें मेन जो किरदार है हमारा पुलिस के तो हमने शुरू किए, लेकिन जो आप जो अमीन नुमाइंदगान है, जो यहाँ पे बरादरान है, उनका ये है कि जैसे उन्होंने बात की बड़ी मेहनत से और उन्होंने बड़ी मीटिंग, स्पेशल मीटिंग की, 1 पॉइंट एजेंडा से इस मीटिंग का कि हमें मरकज दिया जाए शुरू। जी मेरे साथ साहब के MPA शबीर अहमद कोटला साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं खिदमत बरकत के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, खिदमत मरकज़ आपको पता है, आप तमाम लोग क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बेशुमार हैं हमारे इलाका से, और बिलखसूस तहसील खारियां से आपको इतने डिस्टेंस पे जाना पड़ता था। और रिमोट एरियाज जो हैं कोटला से आगे, उन लोगों को भी बॉर्डर के करीब जो आज़ाद कश्मीर का सरहदी इलाका है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह DPO साहब ने फरमाया कि 18 सर्विसेज जो भी आपको गुजरात और खारियां में मुयसर हैं वो यहाँ पे हैं। तो मेरी आप मीडिया की बदौलत आपसे यही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और इसको एडवर्टाइज करें ताकि लोगों को पता चले कि कोटला के अंदर उनको ये सहूलत जो है वो दस्तियाब। बिल्कुल, इनका कहना है 18 खिदमत मरकज में 18 जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी की जानिब से निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में नाजायज इजाफा और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस और पाकिस्तान की गिरती हुई मैशियत के जिम्मेदारान हुक्मरानों के खिलाफ आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान कर दिया और धरना दे दिया। इनका कहना था इलेक्शन कमीशन का फैसला देर आया दुरुस्त आया, ये इलेक्शन नहीं करवाते तो आइन से इनहरफ होगा। हल्का बंदियों में मिसाइल हैं, हल्का बंदियां जवाब बनाकर इलेक्शन से इनहरफ नहीं किया जा सकता। हम किसी सियासी जमात के साथ आपको बताएं कि चौधरी काशिफ शहजाद सदर मार्केट कमेटी की सरबराही में वक्फ ने जनरल मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशन अलकबीर डेवलपर्स से मुलाकात की। अलकबीर डेवलपर्स के तमाम प्रोजेक्ट्स की ट्रांसफर और बाकी के मसाइल जेर बहस लाए और मस्बत तजावीज भी दी गई। सदर मार्केट कमेटी चौधरी काशिफ शहजाद की अपनी काबीना मेंबरान के हमरा, जिनमें मियां सिफ्तुल्लाह, नायब सदर नदीम अनवर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राजा जाहिद अनवर, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ भट्ट, एग्जीक्यूटिव मेंबर के हमरा सैयद जवाद हुसैन, जनरल मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशन अलकबीर डेवलपर से उनके ऑफिस में बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात की, जिसमें अलकबीर डेवलपर के तमाम प्रोजेक्ट्स की ट्रांसफर और बाकी के तमाम मामलात भी जेर बहस आए, जिनमें डेवलपर बरादरी की तरफ से पेश की गई मस्बत तजावीज भी शामिल थी। जनरल मैनेजर सैयद जवाद हुसैन ने अलकबीर डेवलपर मार्केट कमेटी के अरकान को तमाम मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी, तमाम मुश्किलात के अजाले और फिलफौर हल की यकीन दहानी भी करवाई है। सदर मार्केट और कमेटी अरकान ने जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालने पर सैयद जवाद हुसैन को मुबारकबाद पेश की। अलकबीर डेवलपर के तमाम प्रोजेक्ट की तामीर और तरक्की के लिए दुआ भी की गई। यूनिवर्सिटी ऑफ होमो इकोनॉमिक्स में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फरोग पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। वुमेन डेवलपमेंट सेंटर के तहत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन के फरोग के मौजू पर खसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साबिक MPA सरदार रामेश सिंह और वाइस चांसलर प्रोफेसर फलीहा काजमी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली अपनी इस रिपोर्ट में।
یونیورسٹی آف ہومک اکنامکس میں بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ کے لیے وومن ڈیولپمنٹ سینٹر کے تحت بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ کے موضوع پر خصوصی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امن اور بھائی چارہ اور قوت کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کا بنیادی کام یہی ہے کہ وہ اپنے طلباء کے ذریعے امن کے فروغ میں کردار ادا کریں۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے طالبات سے خطاب میں کہا، ہر مذہب کی بنیادی اکائی امن اور بھائی چارہ کو فروغ دینے کی ضامن ہے۔ ہمیں درسگاہوں کے ذریعے سے امن کے پرچار کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا، پاکستان کی سکھ کمیونٹی اپنے وطن سے محبت کرتی ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر تنویر قاسم کا کہنا تھا کہ انسان کا اصل جوہر اخلاق ہے۔ یونیورسٹیز اپنے طلباء میں اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا امن کی ضمانت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، عالمی انسانیت کو ثقافتی ٹکراؤ سے بچا کر مذاہب کے مابین مکالمے، محبت اور دوستی کے رشتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ اس موقع پر پروفیسر اشوک کمار کا کہنا تھا، پاکستان کی اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے۔ کسی واقعہ کو بنیاد بنا کر پاکستان کے تشخص کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ سیمینار میں سابق ایم پی اے سردار رمیش سنگھ اروڑا، پروفیسر اشوک کمار، وائس چانسلر ڈاکٹر فلیحہ زہرا کاظمی، ڈائریکٹر پنجاب ایچ ای سی ڈاکٹر تنویر قاسم، برگد فاؤنڈیشن سے سبیحہ شاہین، جیسیکا الیاس اور ڈاکٹر ارم ارباب سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے پلاننگ پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ 725 ملین کی رقم منظور اوقاف کی طرف سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو PCB 1B پیش کر دیا گیا ہے۔ دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی رواں ہفتے ڈیزائن اور ڈرائنگز کو حتمی شکل بھی دے دے گی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات منصوبے پر عمل درآمد، جبکہ اوقاف و مذہبی امور اس عظیم منصوبے کو سپروائز بھی کرے گی۔ PDW، بلیورڈ بھی اور ایڈمنسٹریٹر اپروول بھی جاری کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ محکمہ CNW کی طرف سے ٹیکنیکل سیکشن کا اجرا بھی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی اجازت کے ساتھ ہی ٹینڈرنگ پروسیس پر بھی کام کیا جائے گا اور تکمیل کا شیڈول بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اس عظیم تعمیراتی منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید اور سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے متعلقہ اداروں کے ساتھ دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا دورہ کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز احمد کھچی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو پاک پتن رانا محمد عمر، چیف انجینئرنگ بلڈنگ CNW شہزاد حسین، اسسٹنٹ کمشنر پاک پتن نعیم بشیر، GM نیسپاک عادل نذیر، سینئر مینیجر ID عامر فریدی، آرکیٹیکٹ ID نعمان احمد، DSP پاک پتن وسیم افضل، SC بلڈنگ ساہیوال ثاقب رحیم، سب انجینئر VCLA احسان محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اوقاف آصف اعجاز، ایکسین اوقاف صدر دفتر رانا وحیب، ایڈمنسٹریٹر اوقاف پاک پتن رانا طارق علی، SDO اوقاف پاک پتن اعجاز احمد اور مینیجر اوقاف پاک پتن اظہر فرید و دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری کی مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد۔ سابق صدر مملکت آصف زرداری نے سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی صحت سے متعلق خیریت بھی دریافت کی۔ صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ملاقات کے موقع پر چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت ہفتہ وار کارکردگی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں آپریشنز، ریونیو اور انجینئرنگ ونگ کے افسران نے بھی شرکت کی۔ شہر بھر میں پانی اور سیوریج کی جاری ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ غفران احمد نے کہا کہ تمام تر ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں گے۔ تمام منصوبوں کی تکمیل کے ساتھ تمام ملبے کو فوری صاف کروایا جائے گا۔ تمام ترقیاتی منصوبوں کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ منصوبے سے جڑی پرانی پانی اور سیوریج لائن کو منقطع کر دیا جائے گا۔ MD واسا کی تمام ڈائریکٹرز کو بجلی کی بچت کے حوالے سے خصوصی اقدامات کرنے کے احکامات بھی جاری۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ واسا لاہور کی ہمیشہ سے اولین ترجیح ہے۔ رواں ہفتے 34 غیر قانونی کنیکشنز کو
रेवेन्यू नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। 18 गैर कानूनी कनेक्शन मनकता जबकि 81 नए कनेक्शन रेवेन्यू नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। रवा हफ्ते 160 किलोमीटर सीवरेज डीसिल्टिंग, 9 किलोमीटर ड्रेन डीसिल्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। डीसिल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। तमाम डायरेक्टर्स डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम डीसिल्टिंग करवाएं। एमडी वासा का सुपरवाइजर डीसिल्टिंग ऑपरेशन मॉनिटरिंग का इंदिया भी दे दिया है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तालीम ख्वाब बनकर रह गई है। महकमा तालीम की गफलत मुस्तकबिल के मामारों को खाकरूब और चपड़ासी बना दिया गया है। लिया के गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जमशेद बंदवाला में नन्हे बच्चों के हाथों में झाड़ू दे दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में भी सफाई सुथराई का काम तालिब इल्मों से लिया जा रहा है। स्कूल इंतजामिया ने माजूर बच्चों को भी सफाई पर लगा दिया है। कोहिनूर न्यूज ने बच्चों की झाड़ू फेरने, कचरा उठाकर बाहर फेंकने, बाहर से सामान और पानी लाने की वीडियो हासिल कर ली है। इस पर खसूसी रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली अपनी इस रिपोर्ट में। पंजाब के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करना ख्वाब बन गया। महकमा तालीम पंजाब ने मुस्तकबिल के मुमारों को खाकरोब और चपड़ासी बना दिया। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल जमशेद बंदवाला बालूवाला में नन्हे बच्चों के हाथों में झाड़ू दे दिए गए। लिया के सरकारी स्कूलों में सफाई सुथराई का काम तालिब इल्मों से लेने की फुटेज मंजरे आम पर आ गई। मुतअद्दिद सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान, पीने का पानी बेनायाब हो गया। बच्चे बाहर से पानी भरने पर मजबूर। कोहिनूर न्यूज ने बच्चों से झाड़ू फेरने, कचरा उठाने, बाहर फेंकने और सामान पानी लाने की वीडियो हासिल कर ली। वीडियो में दीगर बच्चों समेत माजूर बच्चों को भी झाड़ू फेरते वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। मासूम बच्चों का कहना है कि बालूवाला के स्कूल के नलके में छिपकली है, इसलिए पानी बाहर से लाना मजबूरी है। स्कूल टीचर ने दर्जा चहारम के मुलाजिम के ना होने की मजबूरी का इजहार करते हुए बच्चों से काम लेने का एतराफ़ कर लिया। वालिदैन कहते हैं बच्चों को तालीम देने की बजाय मजदूरी पर लगाकर मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है। वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर महकमा तालीम के जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की है। कैमरा टीम के साथ मुल्क भर में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसी हवाले से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 664 गैस कनेक्शन मनकता और 40.3 मिलियन से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मजीद मुकदमात भी दर्ज करवाने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शहरों में गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कंपनी की जानिब से पेशावर में 73 गैस कनेक्शन मुनक़दा करते हुए 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। रावलपिंडी रीजनल टीम ने 9 गैस कनेक्शन मुनक़दा किए और 2,30,000 के जुर्माने आयद किए। मुल्तान में 22 कनेक्शन जबकि सरगोदा में गैस चोरी पर 11 लाख के जुर्माने आयद किए गए। गुजरांवाला में रीजनल टीम ने कार्रवाई करते हुए 9 गैस कनेक्शन मुनक़दा किए। गुजरात में 1, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 22 कनेक्शन, साहिवाल में 5, फैसलाबाद में 10, लाहौर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों पर 36 कनेक्शन मुनक़दा किए गए। बावलपुर में 19 कनेक्शन, मुल्तान में 7, शेखुपुरा में गैर कानूनी तोसी पर 7 कनेक्शन मुनक़दा किए गए। मुनक़दा किए जाने वाले कनेक्शन पर लाख रुपए के जुर्माने आयद करते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमात की गर्ज। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सदर एपका लाहौर डिवीजन चौधरी मुख्तार गुज्जर ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन करवाने आई निगरान हुकूमत लीव इनकैशमेंट और पेंशन इस्लाहात नहीं कर सकती। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जायज मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। कि ये चीज़ दे दी गई है कि ठीक है जी, जैसे मरकज़ को हुआ वैसे आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद फौरी तौर पर हमें लीव इनकैशमेंट और LPR का सामना करना पड़ा। वो भी ऐसी है कि वो जो हमें गवर्नमेंट मुलाजिम रिटायर होता है तो उससे ये होता है कि मुझे जो है ना रिटायरमेंट पे 10 लाख 15 लाख 12 लाख रुपया लीव इनकैशमेंट के हवाले से मिलता है। वो इन्होंने कट लगा दिया उस पर, तो उसका सामना था। अभी तो एक और नई चीज़ आ गई कि पेंशन और फैमिली पेंशन जो है ना वो एक नई इस्लाहात की जा रही हैं, वो 70% जो है ना उस पर वो कट लगाया जा रहा है। तो ये एक नई से नई चीज़ ऐसी दी जा रही है। और जब हम जाते हैं, मुलाकात करते हैं, किसी से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये IMF जो है ना वो कर रही है, IMF की वजह से फलान कर रहे हैं, ढींग कर। IMF का जो आप पढ़ें तो उस पर यह भी है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करे, ब्यूरोक्रेट्स अपने खर्चे कम करें।
उनके तो उससे बढ़ रहे हैं खर्चे, अरबों खरबों रुपए की जो है ना वो फॉर्चूनर गाड़ियां ली जा रही हैं, ये दूसरे डाले जो 1.5 करोड़ रुपए को दिए जा रहे हैं, अफसरान को नवाजा जा रहा है, और सेनेट का चेयरमैन है, फलाना चेयरमैन है, फलाना सेनेट है, उनको ताहयात मराहत दी जा रही हैं। जो बंदा 40 साल मुलाजमत करके जा रहा है उसकी इस्लाहात की सूरत में उसकी जो है ना वो पेंशन कम की जा रही है, फैमिली पेंशन कम की जा रही है, लीव इनकैशमेंट ख़त्म की जा रही है, डाका डाला जा रहा है, और जो बंदा 4 साल सर्विस कर रहा है सेनेट का चेयरमैन उसको जो है ना ताहयात मराहत दी जा रही हैं। जो बंदा बिल जमा करा सकता है उसका बिल माफ़ कर दिया जाता है, जो बंदा बिल नहीं जमा करा सकता उसको तनख्वाह के बराबर बिल आ रहा है। अजीब सा निज़ाम है ये पाकिस्तान में। इसीलिए जो है ना पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो है ना मजबूर लोग और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग ठहरे हुए हैं, बड़े मजबूर, वरना जिसके पास ज़रा सी इस्तेदाद है, जहाँ कोई इन्वेस्टर है, छोटा है बड़ा है। लाहौर में पुलिस क्रिकेट टीम की इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में आमद। क्रिकेट टीम के शुरका ने DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर से मुलाकात की। क्रिकेट टीम के शुरका में कोच आमिर सुहेल, कैप्टन शेख अदील हुसैन, किश्वर और राना खुरम वगैरह भी शामिल थे। लाहौर पुलिस क्रिकेट टीम EML टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही और अपने तमाम 7 मैचेस भी जीते हैं। टूर्नामेंट में हुसैन किश्वर ने यंग प्लेयर और राना खुरम ने बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड हासिल किया। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कश्वर ने टीम को शाबाश भी दी और कहा कि फतवाहत का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। DIG इमरान कश्वर लाहौर पुलिस क्रिकेट टीम के सदर भी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज की कारकर्दगी का जायजा इजलास हुआ। लाहौर समेत दीगर अजला के तहफ़्फ़ुज़ मरकज इंचार्जेस ने अपनी कारकर्दगी के बारे में उनको ब्रीफिंग भी पेश की। तहफ़्फ़ुज़ मरकज सरगोदा ने 6.5 माह के दौरान 1846 शहरियों, खवातीन, ट्रांसजेंडर्स और बच्चों को मदद और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 137 अफराद, 869 खवातीन, समात से महरूम 456 अफराद और 348 बच्चों की मुश्किलात का आज़ारा भी किया गया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज ने 380 मुस्तहिक फैमिलीज को आटा, 55 फैमिलीज को राशन, 547 अफराद को बेनजीर इनकम सपोर्ट हेल्प फराहम की। नशे के आदि 8 अफराद का इलाज भी करवाया। 8 बच्चों समेत 12 बेघर अफराद को मदद फराहम की। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 15 अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए। 5 अफराद की जानिब से जॉब और कारोबार का इंतजाम भी किया। शहर और इसके गिरदनवा में 4 मेडिकल कैंप में हजारों शहरियों को बीमारियों की स्क्रीनिंग और इलाज में मुआवनत भी फराहम की है। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों को 700 से ज्यादा खून की बोतलें अहतियात की गई। ब्लड कैंप्स का इनेकाद बाकायदगी से जारी रहेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज सरगोदा की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मुस्तफीद होने वाले शहरियों बच्चों से मुलाकात भी की। IG पंजाब ने इंसानी खिदमत के कामों में मुआवनत फराहम करने पर निजी, सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों का शुक्रिया भी अदा किया। IG पंजाब ने बेहतरीन कारकर्दगी पर फोकल पर्सन इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर और दीगर टीम को कैश, इनामात और तारीफी असनाद से भी नवाजा। AIG एडमिन हमारा अथर, AIG वेलफेयर नवीद अजमल समेत दीगर सीनियर अफसरान भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। निगरान वफाकी वजीर तजारत और सनअत व पैदावार गौहर एजाज और निगरान वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि निगरान हुकूमत के मौसर इकदाम के बायस डॉलर की कदर में कमी आना शुरू हो चुकी है। मुल्क भर में सनती सेक्टर को यकसा कीमत पर गैस मिलेगी। इस वक्त साउथ में गैस सस्ती जबकि नॉर्थ में महंगी है। बिजली चोरों और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दोनों वफाकी वज़रा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर और MD सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तफैल समेत बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। निगरान वफाकी वजीर सनत व तजारत गौहर एजाज और निगरान वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एक आला सतही इजलास में शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। लाहौर चैम्बर के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर अंजुम निसार,
प्याफ के चेयरमैन फहीम रहमान सैगल, लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर, मैनेजिंग डायरेक्टर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी आमिर तुफैल, लाहौर चैम्बर के साबिक सदूर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने भी इस मौके पर शिरकत की। निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा कि अखवान ट्रांजिट ट्रेड के सिलसिले में ठोस इकदाम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की एक बड़ी वजह अखवान ट्रांजिट ट्रेड भी है, जिसकी सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि इसकी वजह से डॉलर की कीमत न बढ़े। गौहर एजाज का कहना था कि रुपए की डिवैल्यूएशन से हमारी एक्सपोर्ट्स को कोई फायदा नहीं हुआ। क्रैक डाउन के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं, इससे डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। इंटरनेशनल $100 मिलियन सरप्लस था अगस्त में। क्या वजह होगी कि इतना हैवी 286 का 305 और 290 का 350? तो ये जो तीनों फैक्टर्स थे, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था कि कहा गया कि हमने IMF के साथ 30 जून का एग्रीमेंट जो है, जो ओपन मार्केट का रेट होगा 5 दिन कंसेक्यूटिव 7% से हमारे इंटरबैंक का रेट फर्क नहीं होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वजीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि रातों रात एनर्जी की कीमतें कम करना मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि नॉर्थ में गैस की कीमत साउथ के मुकाबले में ज्यादा है, साउथ में भी गैस की कीमत बढ़ाकर इस फर्क को कम किया जाएगा। उनका कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। गुज़श्ता 10 रोज के दौरान बिजली चोरों और डिफॉल्टर से 6 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। बहुत बड़ा कंसर्न रहा है इंडस्ट्री की गैस प्राइसेस का। तो हमारे जो गैस सेक्टर है उसके अंदर पिछले कई सालों से गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो रहा है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने गैस प्राइसेस जो रैशनलाइज करनी थी वो नहीं की है। तो पिछले 2 हफ्ते से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम अनाउंस कर देंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने अपने खिताब में कहा कि खसारे में चलने वाले पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की निजकारी की जरूरत भी है। उन्होंने रुपए को मुस्तहकम करने और टैक्स नेटवर्क को वसअत देने की अहमियत पर भी जोर दिया। इससे पहले कि बिजनेस कम्युनिटी की चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूं, मैं आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाली नुमाइंदगान से आला सतह की मीटिंग की और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को बगौर सुना। उन्होंने स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। इसके मुस्बत नतीजे हम सबके सामने हैं। लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में रंगारंग स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया। किसी ने मटका रेस में हिस्सा लिया तो किसी ने सैक रेस अपने नाम की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज का कहना है कि खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद काफी खुशाइंद है। लाहौर से देखते हैं हमजा अब्बासी की ये रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेरे इंतजाम 163वें स्पोर्ट्स वीक की रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मशीरे खेल और साबिक कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साबिक क्रिकेटर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को तंदुरुस्त रखने के लिए खेल की सरगर्मियां जरूरी हैं। इनका कहना था कि तलबा के लिए इस तरह की सरगर्मियों का एहतमाम करना खुशाइंद बात है। पैगाम ये देना चाहते हैं कि देखिए, बात ये है कि बच्चों को आजकल बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का। उस पढ़ाई के स्ट्रेस में उनको दिन रात मेहनत करना पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, दिन को काम करना पड़ता है, क्लासें अटेंड करनी पड़ती हैं। तो इस शदीद दबाव के अंदर उनकी जिस्मानी सेहत बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। तो हम अपना पूरा स्पोर्ट्स वीक करते हैं जिसमें हम, ठीक है, सारा साल हम अपने स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो आएँ और आके स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन एक स्पेसिफिक वीक होता है जब इनको आपस में मुकाबला करने की जो है ना मौका भी दिया जाता है। और मुकाबला करना मकसद एक दूसरे को पीछे धकेलना नहीं है, इनमें ये सलाहियत पैदा करनी है कि एज अ टीम कैसे हम काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के तलबा ने सैक रेस, मटका रेस और चाटी रेस में हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स वीक के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज ने कोहे नूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इवेंट का मकसद तलबा को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रखना और खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना है। कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ हमजा। अफसोसनाक खबर आपको बताएं कि लाहौर गुजरपुरा के इलाके में बेटी ने बाप को फायर मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल बिलाल खान 5 बच्चों का बाप था, 2 बेटे 3 बेटियां थे। मकतूल को इसकी बड़ी बेटी आमना ने कत्ल किया जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना गुजरपुरा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर 16 साल लड़की आमना को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने वालिद को फायरिंग करके कत्ल किया। कत्ल की वजूहात मैं बताता चलूं कि जो बच्ची ने बताया है मुझे कि मेरा वालिद जो है वो मेरे साथ आए रोज शर्मनाक हरकत करता था, जिसको कई मरतबा मना किया लेकिन बाज नहीं आया। आखिरकार मेरे साथ ज्यादती करने पर उतर आया और मैंने अपने ही वालिद के पिस्टल से जो फायरिंग करके वालिद को कत्ल कर दिया। इतराफ़े जुर्म करती है लड़की जो कि आमना थी, 16-17 साल इसकी उम्र थी और ये बड़ी मुतमीन यहाँ पर बैठी हुई है। उसका कहना था कि अपनी इज्जत गंवाने से बेहतर था कि अपने वालिद को कत्ल कर देना। आखिरकार मैंने वही किया और बड़ा सोच समझ के किया, क्योंकि आए रोज मेरे साथ ये शर्मनाक हरकत भी करता था, जिसका जो है वो बकायदा मैंने पुलिस में जाकर बताने का भी सोचा था, लेकिन मुझको जो है उसने डराया था मेरे वालिद ने, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबा के कत्ल कर दूंगा। ताहाल उसकी ये हरकत मैं बर्दाश्त करती रही। आखिरकार जो है वो आज जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि मेरा वालिद मेरे साथ ज्यादती करने लगा था और मेरे वालिद का जो पिस्टल पड़ा था, जिसका लाइसेंस भी मौजूद नहीं था, उसके साथ फायरिंग करके इसने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। बिलाल इसका नाम था जो मकतूल है और 5 बच्चों का बाप था। इसकी 3 बेटियां थी और 2 बेटे थे, लेकिन तमाम के तमाम बड़े मुतमीन है, बहन भाई जो इकट्ठे बैठे हुए हैं इस वक्त थाना में, और उनका यही कहना है कि हमने अपने वालिद को कत्ल करके जो है वो एक अच्छा काम किया है। जो अपनी औलाद को, अपने खून को जो है वो इस तरह से करता था, तो वो लोगों की बेटियों के साथ आगे जाके क्या करेगा। ताहाल जो है वो आमना ने फायरिंग करके अपने वालिद बिलाल को कत्ल कर दिया। बिलाल 5 बच्चों का बाप था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा आलम लंगड़ियाल से जब मेरी बात हुई थी तो उनका भी ये कहना था, SHO गुजरपुरा से मेरी बात हुई थी अजीम अनवर से, लिहाजा अजीम अनवर का ये कहना था कि अगर बच्ची इसी तरह की हरकत जो इसका वालिद करता था थाना में आकर बताती तो बाकायदा तौर पर आज इसका वालिद हथकड़ी लगाकर उसको जेल भिजवा दिया जाता, लेकिन बच्ची ने जो है वो खुद ही ये कदम उठाया और उसको कत्ल कर दिया। कत्ल की वारदात के बाद लड़की ने जो है वो बाकायदा तौर पर भागने की कोशिश भी नहीं की, वहीं पर मौजूद रही और मोहल्लेदारों ने 15 पर कॉल की और बच्ची को जो है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी ये बात देखी जाए तो इलाका मुकीम जो थे वो भी ये बात कर रहे थे कि इसके वालिद की जो है वो कुछ नकलो हरकत ठीक नहीं थी, मोहल्ले में आने जाने वाली बच्चियों के साथ भी ऐसी हरकत करता था। आखिरकार देखते ही देखते उसने अपनी बच्ची के साथ ये जो है वो हद पार कर दी कि उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करने लगा था। आमना से जब मेरी बात मुलाकात हुई, आमना भी मेरे पास ही मौजूद है इस वक्त। आमना का कहना था कि मैंने अपने वालिद को कत्ल करके एक अच्छा काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून की नजर में जो ऐसी चीज होती है, कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो जराइम की, तो उसकी फौरी तौर पर जो है वो 1787 या 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं और उसको गिरफ्तार करवाते हैं। लेकिन आमना ने खुद ही पिस्टल उठाया, अपने वालिद को कत्ल कर दिया और कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने जो है वो आमना को गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने काफी तफसीलात से जो है इस मामले को बताया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान कर दिया है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी की जानिब से निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में नाजायज इजाफा और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस और पाकिस्तान की गिरती हुई मैशियत के जिम्मेदारान हुक्मरानों के खिलाफ आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान कर दिया और धरना दे दिया। इनका कहना था इलेक्शन कमीशन का फैसला देर आया दुरुस्त आया, ये इलेक्शन नहीं करवाते तो आइन से इनहरफ होगा। हल्का बंदियों में मसाइल हैं, हल्का बंदियां जवाब बनाकर इलेक्शन से इनहरफ नहीं किया जा सकता। हम किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम अपने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने हल्कों में तमाम उम्मीदवारों का चुनाव मुकम्मल कर लिया है। हमारा मंशूर इनकलाबी मंशूर है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है। हम 3 दिन के लिए गवर्नर उसके सामने बैठे हैं, देखते हैं ये पेट्रोल की कीमत कैसे वापस नहीं लेते, देखते हैं ये बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस खत्म क्यों नहीं करते। कोहिनूर ने उससे खुसूसी गुफ्तगू करते हुए लियाकत बलोच का कहना था, लोग तंग आमद बजंग आमद है, लोगों के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं रही कि वो धरने दे, एहतजाज करे, जलसे करे, जुलूस करे, रैलियां करे, हुक्मरानों का जीना आराम कर दे। इसलिए इन हुक्मरानों ने आवाम का जीना आराम कर दिया। पेशावर में गवर्नर हाउस के 3 दिन के धरने के बाद आज गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर लाहौर में धरना शुरू हो गया है। हर तरह की रुकावट पैदा की गई, लेकिन इंतज़ामिया के पास, पुलिस के पास आवाम के जो बिफरे हुए जज्बात हैं उनको रोकना मुमकिन नहीं है।
हम पुरअमन हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। अवाम बिजली की कीमतों से, पेट्रोल की कीमतों से, अफरात ज़र से, महंगाई की बदतरीन और IMF की जो बदतरीन जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान किया हुआ है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान किया हुआ है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल और महंगाई की बढ़ती हुई शिद्दत की वजूहात की बिना पर 3 रोजा एहतजाज का ऐलान किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा एहतजाज और धरने का ऐलान किया हुआ है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस की वजूहात की बिना पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान किया हुआ है। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा एहतजाज और धरने का ऐलान किया हुआ है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों, पेट्रोल की कीमत में इजाफी टैक्सेस की वजूहात की बिना पर ये धरने का ऐलान किया गया था। ये ऐलान किया गया है अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान किया हुआ है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस की बिना पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान किया है। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बिजली के बिलों में लातदाद इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने गवर्नर हाउस के सामने 3 रोजा धरने का ऐलान किया हुआ है। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से CEO क्लब वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान एंड UAE चैप्टर के वफ्द से मुलाकात की। वफ्द में CEO क्लब वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान एंड UAE चैप्टर के पैट्रन इन चीफ सुहेल अल जरूनी, सदर मोहम्मद एजाज, अखुवत फाउंडेशन के सरबराह अमजद साकिब, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और मायानाज कारोबारी शख्सियत ने भी शमूलियत की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि CEO क्लब वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान एंड UAE का मकामी कारोबारी अफराद के लिए UAE में कारोबारी मंसूबे शुरू करने के लिए एक बैनुल अक़वामी फोरम मुहैया करने का इकदाम काबिल तहसीन है। इससे दो तरफा तजारत को फरोग देने और मुल्क की मईशत बेहतर बनाने में मदद भी मिलेगी। मिलजुल कर आगे बढ़ना और बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। मईशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। 2018 के बाद पॉलिसियां तब्दील होने से मुल्क के मईशी हालात ज़बोहाली का शिकार हो चुके हैं। आज हालात दोबारा बेहतरी की तरफ गामजन है। उम्मीद है आगे मजीद बेहतरी होगी। सदर CEO क्लब वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान एंड UAE मोहम्मद एजाज ने कहा कि हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी की सरपरस्ती करे तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है। सुहेल अल जरूनी ने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। इस फोरम के जरिए UAE और पाकिस्तान के दरमियान अवामी सतह पर तिजारती रवाबित मजबूत कर लिए गए हैं। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह अमजद साकिब ने कहा, इस फोरम के जरिए पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर दुनिया को पेश की जाएगी।
न्यूज स्टूडियो से फिलवा के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।